सो टुडे इज़ 27 अक्टूबर 2023। तो आज हम देखेंगे कि आज के करंट अफेयर्स में क्या है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी बीएचयू लॉन्च डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथन 2023। तो ये इसका जो एम किया गया है, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप इनोवेटिव एप्स एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन डिटेक्ट डार्क पैटर्न्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इट इंक्लूड ब्राउजर एक्सटेंशन, एड-ऑन्स, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा। A dark pattern क्या होता है refers to practice adopted by online platforms which mislead people into paying for items or services they did not intend to do originally. It is considered an unfair trade practice. ये जो आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में आता है। गवर्नमेंट इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2023। एप्लीकेबल ऑल प्लेटफॉर्म्स में है और क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट सेलर्स गुड एंड सर्विसेज इन इंडिया पे। सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ डार्क पैटर्न्स पे अगर हम देखें तो सास बिलिंग है, फाल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ड्रिप प्राइसिंग एंड नैगिंग। दीज आर द डार्क पैटर्न्स। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड वुमेन्स राइट ऑफ पेरेंटहुड एंड स्ट्रक डाउन 2023 अमेंडमेंट टू सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स ऑफ 2023। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट वो क्या है, वुमेन सफरिंग फ्रॉम द MRKH सिंड्रोम एक डिजीज है। चैलेंज द 2023 अमेंडमेंट दैट mandates that both male and female gamete, sperm and egg respectively, must come from intending couple. The provision for challenge as petitioner woman has absent ovaries and uterus, hence cannot donate her own eggs for surrogacy. Center ने क्या बोला है that use of the donor egg was expected as process of surrogacy cannot be availed but under the law unless the child was genetically related to the intending couple. तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं surrogacy regulation act of 2023 है क्या। Only altruistic surrogacy is allowed and penalize commercial surrogacies. Intending people must be legally married होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 23 से 50 के बीच में, and female for female and for the male 26 से 55 के बीच में, and must not have a surviving child. Surrogate mother must be married woman having a child of her own and जो एज होनी चाहिए 25 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए. National Assistant Reproductive Technology and Surrogacy Board NARTSB to review and monitor implementation of act, supervise functioning of state ARTSB. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जेनेटिकली रिलेटेड टू इंटेंडिंग कपल हैज़ टू बी रीड एज बीइंग रिलेटेड टू द हस्बैंड व्हेन रूल वुड अप्लाइज। तो ये बस सरोगेसी के बारे में नीचे हम ये देख लें। सरोगेसी रेगुलेटेड बाय Surrogacy Regulation Act 2021 is a practice whereby one woman bears and give birth to a child for an intending couple. Okay. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। एज पर द रिपोर्ट वर्ल्ड is fast approaching risk tipping points on multiple points. Risk tipping point क्या होता है? इस मोमेंट होता है when socio-ecological system loses its ability to buffer risk, leading to increased potential for catastrophic impacts. Catastrophic आप ये पॉइंट देख लीजिएगा क्या होता है. This is different from the so-called climate tipping points, which means a specific threshold after which unstoppable changes occur influencing global climate. उसके बाद 6 interconnected risk tipping points क्या है? Accelerating extinction that trigger chain reaction to ecosystem collapse, groundwater depletion, mountain glacier melting, space debris, unbearable heat, uninsurable future. Okay, about the UN your EHS की बात करिए, academic arm है of the United Nations act as a global think tank established हुआ तो 2003 को. मिशन क्या है? कैरी आउट रिसर्च ऑन रिस्क and adoption related to environmental hazards and global change, promotes policies and programs to reduce these risks while taking into account the interplay between the environmental and societal factors. इस साइड पे अगर हम देखें तो ड्राइवर्स ऑफ रिस्क टिमिंग क्या है? जो ह्यूमन इंड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, insufficient रिस्क मैनेजर, ग्लोबल डिमांड प्रेशर, इनइक्वलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी. सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ अवॉइड प्रिवेंटिंग रिस्क, अडेप्ट डीलिंग द रिस्क, डिले स्लोइंग रिस्क प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्म सिस्टम ओवरऑल. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिम्पोजियम ऑन प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव ट्रेडिशनल सीड थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर ऑर्गेनाइज बाय द भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड. BBSL इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इस्टेब्लिश्ड 2023 को. ई की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है एक्ट 2002 के अंदर पे. एम करता है टू इंश्योर द ट्रेडिशनल एंड सर्टिफाइड द साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड reach every farmer, focus on the production, testing, certification, procurement, processing of seeds in the country. जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं naturally grown in indigenous regions, highly suited for quality and nutritional excellence in local environment. तो सीड प्रोडक्शन सिस्टम होता है इंडिया पे. इट adheres to limited generation system for seed multiplication in a phased manner. 3 जनरेशन रिकॉग्नाइज हुई है, ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड. जो ब्रीडर होता है वो प्रोजनी होता है न्यूक्लियस सीड ऑफ द वैरायटी. जो फाउंडेशन सीड होता है ब्रीडर ऑफ द सीड होता है. सर्टिफाइड सीड होता है प्रोजनी ऑफ द फाउंडेशन सीड produced by registered seed growers under supervision of the seed certified agencies. तो अदर इनिशिएटिव्स हैं और प्रोविजन से हो गया है सीड सेक्टर ऑफ इंडिया के. सीड एक्ट ऑफ 1966 एक तो है क्वालिटी ऑफ सर्टेन सीड फॉर सेल के लिए उसमें दिया जाता है. नेशनल सीड पॉलिसी ऑफ 2023 है. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स ऑफ 2021 है. सीड विलेज प्रोग्राम है. सबमिशन जिसको हम एस एम एस टी भी बोलते हैं,
अंडर द नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सीड सर्टिफिकेशन क्या है, एनहांस करेगा सीड रिप्लेसमेंट रेट को, ठीक है। प्रिजर्व करेगा जेनेटिक आइडेंटिटी एंड इंश्योर जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड्स को, इंप्रूव करेगा सीड एक्सपोर्ट्स प्रमोटिंग इंडियन वैराइटीज, ओके। तो ये डेटा आप नोट कर लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट टैक्सेस डेटा शोज रोबोस्ट ग्रोथ इन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अ वाइडनिंग टैक्स बेस। और इसके के अकॉर्डिंग जो डेटा में दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा 2013 से 14 टू 2021 से 23, ये डेटा बस आपको नोट कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ वाइडनिंग टैक्स बेस पे एक देख ले कि इंप्रूव करता है गवर्नमेंट एबिलिटी टू फंड सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ लोअरिंग टैक्स रेट्स एंड सीजेस इम्पोज्ड, हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड बजटिंग इन अ फिजिकल ईयर। मेजर टू इंक्रीज टैक्स बेस इंक्रीज करने के मेजर्स क्या हो सकते हैं, प्रमोटिंग वॉलंटरी कॉम्प्लाइंसेस, ईजियर पेडिंग्स, फॉलोइंग अप द पोटेंशियल नॉन फेलर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिस्केक किर्गिस्तान होस्टेड 22nd संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपको क्या करना है, किर्गिस्तान की लोकेशन, जो कॉपरेशन के संघाई कॉपरेशन के मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के बारे में आपको जानना है। तो ये क्या है, मीट एवरी ईयर करती है टू डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ मल्टीलेटरल कॉपरेशन, अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशनल एनुअल बजट एक्सेट्रा। और अबाउट संघाई के बारे में अगर बात करें, जो स्टैब्लिश हुआ था 2021 को इन संघाई बाई द संघाई 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है गाइडेड बाई द संघाई स्पिरिट, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, बेनिफिट, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन एंड एक्सेट्रा। जो मेंबर्स हैं 9 है, अब ईरान हो गया है, इंडिया हो गया है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ओके। जो ऑब्जर्वर स्टेट है वो है अफगानिस्तान, बेलारस एंड मंगोलिया, ठीक है। जो की गोल है इंश्योर एंड मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है, जो मीट करता है ईयरली। परमानेंट बॉडीज कौन है, सेक्रेटरीट ऑफ बीजिंग मतलब चाइना, रीजन एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर राइट्स इन तस्कांत उज्बेकिस्तान, ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, रशियन और चाइनीज है। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 40% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। हेल्प करता है टैकल सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ठीक है। स्ट्रेंथ करता है इंडियाज आउटरीच टू सेंट्रल एशिया एंड मल्टीपोलैरिटी इन यूरेशिया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। ये आरबीआई ने डायरेक्ट करा है CISEs टू इंट्रोड्यूस अ कंपनसेशन फ्रेमवर्क फॉर डिले इन अपडेटिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फॉरओवर। जो CCI होती है शायद compensation to the complainant if the complaint could not be resolved within the 30 days. So CICs maintain credit information of borrowers which can be accessed by banks and other lenders. To collect information from banks, lending institutions refers to CIC's credit report to decide borrowers credit worthiness. CICs are licensed by the RBI. Reference fuels क्या होते हैं, जो इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च इंडिया फर्स्ट गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल, ठीक है। करंटली जो है वो इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, ठीक है। RF क्या होता है, रेफरेंस फ्यूल हर प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स यूज फॉर कैलिब्रेशन and testing of vehicles by auto original equipment manufacturer and organization involved in testing and certification in automotive field. Specification requirement of RF are more stringent than commercial gasoline and diesel. जो indigenous RF meets automotive industry standard specification and available at better price with reduced lead time. उसके बाद हमारे नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड आ जाता है, जो सेटअप करा है 2002 को, प्रमोट करता है मेडिकल प्लांट सेक्टर को अंडर द वर्किंग सेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। टू मैंडेट टू डेवलप एंड appropriate mechanism for coordination between the various ministries, ओके। ये जो है वो अंडर किसके आता है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ कैंपेन के अंदर पे आता है। उसके बाद हमारे देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक है गिर इंडिजीनियस काउ ब्रीड। ये आप पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या है। और अनाईमुड़ी टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना है, जो कि तमिलनाडु में है। ऑस्ट्रियोपोरोसिस होती है, बोन डिजीज है, ठीक है। लॉस ऑफ बोन डेंसिटी वगैरह हो जाती है, इसको हम साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। वज्र मुस्ती कलंग भी है, वज्र मुस्ती कलंग इज अ फॉर्म ऑफ रेसलिंग है, डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल गैपलिंग एंड इंट्रियल जेस्टी। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री के बारे में जो है वो इनाग्रेट करे गए हैं। प्लेसेस का अगर बात करें तो आज का प्लेस हमारा कतार, जिसकी कैपिटल है दोहा। और ये अगर यहाँ पे फिगर की बात करें तो कतार के आसपास के जो एरियाज हैं, UAE है, ओनाम, एनम, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान और पर्शिया गल्फ के पास इसका लोकेशन पड़ता है, अरेबियन सी पे, ठीक है। ये जो है कोर्ट इन कतार सेंटेंस्ड 8 फार्मर पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी टू डेथ। जो इसका कॉन्टेस्ट है, पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो ईस्ट ईस्ट एशिया है। इट्स सोल लैंड बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करता है, एंड रेस्ट द टेरिटरी बीइंग सराउंडेड बाय द पर्शियन गल्फ। उसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ Persian Gulf at Qatar Peninsula. It has one of the world largest reserves of petroleum and natural gas, sand dunes and land flats, and something a cheap topological feature. No permanent bodies of fresh water की कोई permanent bodies नहीं है. Highest point जो है अबू अल बाउल हिल है. आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Subscribe please.